Dear student, today I will discuss some basic features related from the chapter Framing the Constitution. Certain basic values were accepted by all national leaders as a result of the Nehru Report and the Fundamental Rights Resolution passed by the Karachi session of the Indian National Congress. These included universal adult franchise, right to freedom and equality, and protection of minority rights. As a result of 1937 elections, the Congress and other political parties were able to form governments in the provinces. This experience with legislative and political institutions helped in developing an agreement over institutional design. The Indian Constitution thus adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act of 1935. The founding fathers were also inspired by the ideals of the French Revolution, the working of parliamentary democracy in Britain, and the Bill of Rights in the USA. The 1917 Russian Revolution inspired our leaders to establish a government based on social and economic equality. While addressing the meeting of the Constitution Assembly on 13 December 1946, Pandit Jawaharlal Nehru spoke about the ideals of the new Indian Constitution. He discussed everything in a broad historical perspective. He referred to the historic efforts made in the past and achieve the goals of justice, liberty, equality, fraternity and fundamental rights. संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कर रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया था। लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श 19वीं शताब्दी से ही भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे रूप से जुड़े हुए थे। जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा विवाह का समर्थन किया तो वे सामाजिक न्याय का ही समर्थन कर रहे थे। जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए अभियान चलाया तो वह धर्मों को और अधिक न्याय संगत बनाने का ही प्रयास कर रहे थे। जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों के उत्पीड़न का प्रश्न उठाया तथा कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों ने मजदूरों और किसानों को एकजुट किया तो वे भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक दमनकारी और अवैध सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन निश्चित रूप से लोकतंत्र एवं न्याय, नागरिकों के अधिकारों और समानता का संघर्ष भी था। On 27 August 1947, B. Poker Bahadur from Madras made a powerful plea for continuing separate electorates. He said, "It is a political framework in which minorities can live in harmony with people who are in majority. It is an arrangement which can minimize differences between different communities. It can provide
good representation to the minorities in the political system of the country. It enables other to hear voice of the minority and take into account its views and opinions. Only the minority people can choose their true representatives. This demand for separate electorates provoked anger amongst most nationalists. In the passionate debate that followed, a range of arguments were offered against the demand. Most nationalists saw separate electorates as measures deliberately introduced by the British to divide the people. It can lead to riots, violence, and civil war. It is a poison in any political system. It divides the nation and causes bloodshed as one community turns against the other. It is a mischief left behind by the British. It is harmful not only to the nation but also to the minorities. It is rather suicidal to the minorities. It is self-destructive as it isolates the minorities from the majority. It divides loyalty of the citizens towards their nation. भारतीय संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के मुद्दे पर दो मत थे, एक समर्थन का तो दूसरा विरोध का। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने अपने भाषण द्वारा पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने की जोरदार वकालत की। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक हर जगह होते हैं, उन्हें हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। हमें आवश्यकता एक ऐसे सामाजिक और राजनीतिक ढांचे की है जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ रह सकें और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो। इसके लिए आवश्यक है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त हो और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं हो सकता। बहादुर का मानना था कि मुसलमानों के हितों को गैर मुसलमान पूरी तरह नहीं समझ सकते, न ही अन्य समुदायों के लोग मुसलमानों का कोई उचित प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत पृथक निर्वाचिका का विरोध अधिक हुआ। पृथक निर्वाचिका के पक्ष में दिए गए तर्क से अधिकतर राष्ट्रवादी सदस्य भड़क गए। उनका मानना था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी। आर.वी. धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा, अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला। इसकी आड़ में उन्होंने अल्पसंख्यकों को फुसला लिया है। अब इस आदत को छोड़ दें। अब कोई आपको बहकाने वाला नहीं है। विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर और भी भड़क उठे थे। उन्हें लगता था कि इससे निरंतर गृह युद्धों, दंगों और हिंसा की भूमिका तैयार होती रहेगी। सरदार पटेल ने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय जो हमारे देश की पूरी राजनीति को
खा चुका है। उनके अनुसार यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, रक्तपात को जन्म दिया और देश का विभाजन कर दिया। पटेल ने कहा, क्या तुम इस देश की शांति चाहते हो? यदि चाहते हो तो पृथक निर्वाचिका को तुरंत छोड़ दो। पृथक निर्वाचिकाओं का विरोध करते हुए गोविंद वल्लभ पंत जी ने कहा कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि स्वयं अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। वह बहादुर के इस विचार से तो सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह समाज के विभिन्न वर्गों में कहाँ तक आत्मविश्वास पैदा कर पाता है। उन्हें इस तर्क पर भी कोई आपत्ति नहीं थी कि एक स्वतंत्र देश में प्रत्येक नागरिकों के साथ ऐसा आचरण किया जाना चाहिए जिसमें न केवल उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो बल्कि उसमें स्वाभिमान भाव भी पैदा हो। वह मानते थे कि बहुसंख्यक बहुल समुदाय का यह दायित्व है कि वह अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझे, उनकी आकांक्षाओं को महसूस करे। इसके बावजूद पंत पृथक निर्वाचिका का विरोध कर रहे थे। उनका मानना था यह एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को अस्थायी रूप से अलग थलग कर देगा, उन्हें कमजोर बना देगा। शासन में उन्हें प्रभावशाली भागीदारी नहीं मिल पाएगी। सभी मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका के पक्ष में नहीं थे। बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती सिद्ध होगी क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। 1949 तक संविधान सभा के अधिकांश सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के विरुद्ध है। इसकी बजाय मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उन्हें एक निर्णायक आवाज मिल सके। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री हैविंग different regions where different languages are spoken. So it was quite natural that the Constituent Assembly discussed the intricate issues of language for the newly independent country. The discussion about the language problem generated intense arguments. Before the independence of the country, the Congress had made up its mind to adopt Hindustani as the national language of the country. Mahatma Gandhi had also approved this decision. He was convinced that everyone should speak in a language which is understood by most of the common people. Hindustani was not a new language. It was a blend of Hindi and Urdu. It was a popular language as it was spoken by most of the people of the country. It was a composite language because it was enriched by the interaction of diverse cultures. That is why Mahatma Gandhi preferred it to be the national language of India. The case of the Hindi was mostly pleaded by R.V. Dhulekar, a congressman from the United Province. He wanted that Hindi should be used as the language of constitution making. When he was told that all the members of the Constituent Assembly did not know Hindi, he felt insatiate and stated that those who did not know Hindustani were not worthy
to be the members of Constituent Assembly. He told such members to quit the assembly. There was a commotion in assembly over his remarks. However, the peace and order were restored due to the intervention of Jawaharlal Nehru. The Language Committee of the Constituent Assembly suggested a compromise formula in its report in order to resolve the deadlock over the issue of language. It advocated that Hindi in Devanagari script should be the official language of the country. It also suggested that transition from the English to Hindi would be gradual. It stated that during the first 15 years since the enforcement of the new constitution, English would continue to be used for all official purpose. In other words, the language committee referred to Hindi as the official language and not the national language of India. The member in the Constituent Assembly who hailed from the southern states considered Hindi as a threat of their provincial language. Many suspicions were expressed by Mrs. G. Durgabai of Madras and Sri Shankar Rao from Bombay, T.A. Ramlingam from Madras suggested that the issue of language should be handled with tact and caution. Hindi should not be aggressively thrust upon the southern people. In other words, the members from South India wanted that Hindi should not be forcefully imposed on them. संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर कई महीनों तक वाद विवाद होता रहा और कई बार तो काफ़ी तनातनी भी पैदा हो गई। महात्मा गांधी के अनुसार ऐसी भाषा हिंदुस्तानी भाषा हो सकती है जो हिंदी और उर्दू के मेल से बनी है, जो अनेक संस्कृतियों के आदान प्रदान से एक साझी भाषा बन चुकी है, जिसमें समय के साथ साथ अनेक प्रांतों से नए नए शब्द समाते रहे हैं। उनके अनुसार यही हिंदुस्तानी भाषा उत्तर और दक्षिण एवं हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। परंतु 19वीं शताब्दी के अंत में हिंदुस्तानी का स्वरूप सांप्रदायिक टकराव के कारण बदलता जा रहा था। एक तरफ कुछ लोगों ने फारसी और अरबी के शब्दों को मिलाकर हिंदी को सांस्कृतिक बनाने का प्रयास किया, तो दूसरी तरफ कुछ अन्य लोगों ने उर्दू में फारसी और अरबी के शब्द मिलाकर उसे फारसीनिस्ट बना दिया था। इस प्रकार हिंदुस्तानी धार्मिक पहचान की राजनीति का एक हिस्सा मात्र बनकर रह गई। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा के बहुत से सदस्य हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थे। संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी नेता आर.वी. धुलेकर की भांति बहुदल से सदस्य हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार करने पर जोर देने लगे। परंतु जब कुछ सदस्यों ने यह कहा कि विधानसभा में सभी सदस्य हिंदी नहीं जानते, तो धुलेकर ने पलटकर कहा, इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदी नहीं जानते, वे इस सभा के सदस्यता के पात्र नहीं हैं और उन्हें चले जाना चाहिए। इस प्रकार भाषा के प्रश्न पर काफ़ी वाद विवाद उठ खड़ा हुआ। हिंदी समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हो गए गतिरोध को देखते हुए संविधान सभा की भाषा समिति ने एक फॉर्मूला विकसित कर लिया था।
उसने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के स्थान पर राजकीय भाषा का पद देना स्वीकार किया। ऐसा करके उसने विभिन्न पक्षों को शांत रहने का प्रयत्न किया। हिंदी को राष्ट्रभाषा यदि बनाना है तो धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत में अपने कार्यों के लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। बहुत से सदस्यों का यह मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आक्रामक रुख नहीं अपनाना चाहिए, अन्यथा कुछ लोगों ने गहरी कड़वाहट रह जाएगी। उदाहरण के तौर पर मद्रास के श्री टी.ए. रामलिंगम चेटियार ने सुझाव दिया कि जो कुछ भी किया जाए एहतियात के साथ किया जाए। यदि आक्रामक होकर काम किया गया तो हिंदी का कोई भला नहीं हो जाएगा, अन्यथा लोगों में बड़ी कड़वाहट रह जाएगी।